एक हमारे पास एरिया है जिसमें 29 आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी में 1000 की पॉपुलेशन होती है पर आंगनवाड़ी, 29,000 पॉपुलेशन अगर एक सुपरवाइज़र के अंडर है और 2-2,500 बच्चे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बताइए उसमें से 1 या 2 बच्चा कुपोषित होगा स्लम एरिया में? ऐसा हो सकता है? The Government of India has been celebrating Poshan Mah or Nutrition Month throughout the entire month of September. The aim of this campaign is to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers aiming for holistic nutrition. The Narendra Modi government started the Poshan initiative in 2018 for providing better nourishment for children and pregnant women. Well, even after the promises made by the government, malnourishment in India is on a tremendous rise. A 91% rise in the number of severely acute malnourished children has been seen between November 2020 and October 14, 2021, up from 9.2 lakh to 17.76 lakhs now. Despite being one of the world's largest producers of food items like milk, pulses, wheat, fruits, and a country with multiple schemes addressing malnutrition, India is still far from achieving the national and global nutrition targets. Post the pandemic, Poshan Abhiyan was named Poshan 2.0 and 4 schemes were merged. The 4 schemes to be part of Poshan 2.0 are Anganwadi Services, Poshan Abhiyan and National Creche Scheme and Scheme for Adolescent Girls. Today, we will try to understand the reality of malnourishment in India, the problems it possesses and whether it is right to celebrate Poshan in India. We spoke with some Anganwadi workers who are alleging that they were pressurized to fill in positive numbers to downplay the number of malnourished kids. The identities of these women have been kept hidden. डेटा सरकार को जब जा रहा था तो हमसे मतलब 1-2 प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करने को आई थी कि जब एक होता है कि लेबल बताना पड़ता है कि कुपोषित बच्चों को अलग किया जाए और जिनको रेफरल में डाल दिया जाता है, तो उसके लिए हमें जब नहीं होते थे, ग्रीन नहीं होते थे, तो इसके लिए बोला गया कई बार कि आप ग्रीन में करो, सब लोग ग्रेड्स ऊपर करो इन लोगों। ग्रीन मतलब वो ग्रीन, रेड, येलो, नॉर्मल, रेड, येलो और ग्रीन, रेड और लास्ट में बिल्कुल कुपोषित जो होता है वो रेड जोन में आ जाता है। वो बेसिकली एक सिंपल आदमी को समझने के लिए कि 3 जोन्स बनाए हैं, रेड, येलो, कलर्स बनाए हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड जो है वो बहुत कुपोषित बच्चों में आ जाता है और कुछ बच्चे जो कुपोषित होते थे तो हम लोग कोशिश करते थे कि इनको कुपोषित में ही डाला जाए, क्योंकि कुछ वर्कर्स आती थी जो लॉयल्टी पे काम करती हैं और कुछ वर्कर्स हैं जो मान लेती हैं कहना, और जो लॉयल्टी पे काम करती हैं तो वो थोड़ा बहुत बोलती तो है ही हैं, क्योंकि उनके अंदर से सोल नहीं मानती है कि हम कुछ गलत करें। तो उन्होंने काफ़ी बार फाइट भी करी, अगेंस्ट भी बातचीत, काफ़ी आर्गूमेंट भी हो जाती थी, पर लास्ट में हार के जब थक जाते थे तो फिर ग्रीन में ही करना पड़ता था, क्योंकि फिर ओवर प्रेशर हो जाता था माइंडली सबको, तो फिर ग्रीन में लाना ही पड़ता था। These were some shocking claims made by these ex-Anganwadi workers who were terminated without a prior notice through a WhatsApp message. Smriti Irani, the Child and Women Welfare Minister, classified Poshan Mah as a platform to bring focus to the discourse of nutrition and good health. Thus, it is important to see the reality behind the claims of the Indian government. Let us see what the ministry is doing as a part of this initiative. First of all, the ministry is running awareness programs all over the country. It is conducting panel discussions and also conducting seminars and lectures with women, highlighting the important aspects of hygiene. The Poshan Mah also focuses on counseling of pregnant women, running campaigns with government school children, and also roping in organizations like Rotaract and Lions Club. Like all other government programs, even this scheme focuses on the positive aspects. But conveniently, the Poshan scheme ignores the numbers of kuposhan or malnutrition. In the video, we will give you a reality check on malnutrition vis-a-vis various national family health surveys and Anganwadi workers who work with the malnourished children. कोरोना से पहले हमारा पास जो आता था बना हुआ खाना आता था, रॉ मटेरियल नहीं आता था, बना हुआ खाना आता था, उससे हम बच्चों को बांटते थे और आंगनबाड़ी में हम स्नैक्स बांटते थे। उसके बाद उन बच्चों को
अगर आंगनवाड़ी में ही खाते थे तो आंगनवाड़ी में भी खिला देते थे, कुछ हम घर के लिए भी देते थे, कुछ जो बच्चे नहीं आ सकते थे उनको घर के लिए भी देते थे, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टिंग मदर्स, इनको घर के लिए जाता था। जो खाना होता है वो उनको टाइम टू टाइम तो नहीं मिलता ना। सारे लेबर तबका होता है जो लेबर तबका है वो सुबह निकलती हैं, उनकी माएँ 7:30-8 बजे निकल जाती हैं और शाम को वो 4-5 बजे घर आती हैं अपना काम वाम करके, तो उनको प्रॉपर तरीके से बच्चों की केयर नहीं मिलती उन बच्चों को। वो बच्चे अपना आंगनवाड़ी से जाने के बाद जो हमारे से ले जाते हैं वो खाकर वो फिर पूरा दिन अपने आप को इधर उधर घूमते हैं। मदर के थ्रू भी बच्चे पहले से ही कुपोषित होते हैं वो बच्चे, जब उनकी मदर लैक्टिंग होती है। हमारे कोई राइट्स नहीं है, हमारे पास कोई भी राइट नहीं है, हमारी कोई वैल्यूज नहीं है। हमसे अगर कहा जाएगा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है इनको खाना नहीं देना, ये तो हमारा डिसीजन है ना सर कि खाना उसको जरूरत है कि नहीं है। एक है कि आधार सब लोगों के पास नहीं है अभी फिलहाल, पर जो लेबर क्लास फैमिलीज है उनके पास आधार बेचारों के पास नहीं है, तो उनको खाना नहीं देना। जब करप्शन ऊपर से स्टार्ट होता है तो फिर नीचे वालों को करना ही पड़ता है। जब आपका सीनियर ऊपर से ऊपर सीनियर, उसके ऊपर सीनियर सब करप्ट हो रहे हैं, तो नीचे वाली जो हम लोग जो वर्किंग है, हम अपने एक हम हेल्पर से कितना काम ले लेंगे, तो सारी तरफ जब करप्शन खत्म होगा तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। मैं बताऊं, क्वालिटी जो है ना खाने की, वो एक दलिया खिचड़ी आपको अगर दिया जाए तो रोज़ आप भी नहीं खाएंगे, बच्चे भी नहीं खाते। तो सबसे बड़ा तो ये है कि इन्हें खाने को चेंज करना चाहिए, कुछ एग या कुछ भी मतलब देना चाहिए इन्हें, जैसे फ्रूट्स हैं, एग हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, चेंज होना चाहिए खाना। मैं तो 11 साल से वही दलिया खिचड़ी यही देख रहे हैं, तो वो भी क्वालिटी क्या कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट देती है वही देती है, बच्चों को खिलाओ, वो क्वालिटी नहीं है। The government introduced an app to have an accurate number of malnourishment children. The woman who spoke with us said that there was anything but transparency in this app. ग्रोथ बुक जो थी, ग्रोथ बुक का इतना वैल्यूज अब नहीं रह गई थी। पहले रिटर्न में था, तो हम लोग रिटर्न में जो काम करते थे तो हमें उसके बारे में पता भी होता था कि हमने यही किया है और इतना ही किया है। बट जब से ये ऐप आया है, ऐप आने के बाद तो हम जब सारी वर्कर्स एक दूसरे के साथ ना होता, इतना कोऑर्डिनेट में रही कि किसका कितना ग्रोथ है, किसका कितना ग्रोथ है। जब मीटिंग्स ही नहीं हुई तो फिर वो चीज़ें हिडन होने लगी, तो फिर वो हमें ग्रीन में लास्ट में जाके ग्रीन में ही दिखाना पड़ता था 29-27 तारीख को, जब भी हमारी लास्ट रिपोर्ट जाती थी। मान लीजिए एक सुपरवाइज़र है, एक हमारे पास एरिया है जिसमें 29 आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में 1000 की पॉपुलेशन होती है पर आंगनबाड़ी, 29,000 पॉपुलेशन अगर एक सुपरवाइज़र के अंडर है और 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बताइए उसमें से 1 या 2 बच्चों को पोषित होगा स्लम एरिया में? ऐसा हो सकता है? आप इसी से मेरा मतलब समझ गए कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना।